Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। धन्यवाद सर्वरूपाय यमुना माता जी, पूर्ण सखा प्रभु जी। तो सभी का स्वागत है आज के इस भागवतम के सत्र में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 26, 27, 28, 29 और 30। तो आज यहाँ पे जो है ये अध्याय यहाँ पे का विराम होने वाला है। यहाँ पे तो छोटे छोटे श्लोक हैं, छोटे छोटे तात्पर्य हैं, हम लोग इसको देखते हैं। तो प्रार्थना से शुरू करते हैं हम लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग देखते हैं तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 26 मैं शेयर करता हूँ मैं। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, हम लोग 3, 10, 26, 27, 28, 29 and 30. अर्वाक स्रोतस्तु नवमः शतर एको विदु नृणाम राजा राजोदिकः कर्म परा दुखे च सुखे मानिनाः. The creation of the human beings who are of one species only and who stock their eatables in the belly is the 9th in the rotation. In the human race, the mode of passion is very prominent. Humans are always busy in the midst miserable life, but they think themselves happy in all respects. मैं इसका हिंदी में एक बार अनुवाद पढ़ लेता हूँ। मनुष्य की सृष्टि क्रमानुसार 9वीं है। ये केवल एक ही योनि जाति के हैं और अपना खाद्य पदार्थ उदर में संचित करते हैं। मानव जाति में रजोगुण प्रधान होता है। मनुष्यगण दुखी जीवन में भी सदैव व्यस्त रहते हैं, किंतु वे अपने को को सभी प्रकार से सुखी समझते हैं। सारा श्लोक पढ़ लेते हैं हम एक बार, then we'll focus on upper parts. वैकृतास्त्रय एवैते देव सर्गश्च सत्तमः वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तुभ्या तो अभ्यात्मकाः. O good Vidura, the last 3 creations and the creation of the demigods, the 10th, are Vaikrita creations, in which are different from previously described Prakrita natural creations. The appearance of the Kumaras is both. फिर 28 देवसर्गश्चाष्ट विधो विबुद्धाः पितरो असुराः गंधर्वाप्सरः सिद्धा यक्ष रक्षांसि चारणाः भूत प्रेत पिशाचश्च च विद्याधराः किन्नरादयाः दशैते विदुराख्याताः सर्गस ते विश्वसृक्कृताः. Creation of the demigods is of 8 varieties. The demigods, the forefathers, the asuras or demons, the gandharvas and apsaras or angels, the yakshas and rakshasas, the siddhas, charanas and vidyadharas, the bhuta, preta, pishachas
and the superhuman beings, celestial singers, etc., all are created by Brahma, the creator of the universe. और 30 28 29 साथ में है, ओके, और ये 30 है। अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशान् मनवन्तराणि च एवं रजः प्लुतः सृष्टा कल्पादिश्व आत्मभुर्हरिः सृजति अमोघ संकल्प आत्मैवात्मानम् आत्मना। Now I shall describe the descendants of Manus, the creator, Brahma as the incarnation of the passion of mode of personality of Godhead, creates the universal affairs with unfailing desires in every millennium by the force of the Lord's energies. हरे कृष्णा। और यहाँ पे ये इसका अध्याय का विराम होता है। यहाँ पे हम लोग एक एक तात्पर्य अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं और उस पर हम लोग थोड़ा अध्ययन शुरू करते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। The human being is more passionate than animals, and thus sex life of the human being is more irregular. The animals have their due time for sexual intercourse, but the human beings has no regular time for such activities. The human being is endowed with a higher advanced stage of consciousness for getting relief from the existence of material miseries. But due to his ignorance, he thinks that his higher consciousness is meant for advancing in the material comforts of life. Thus, his intelligence is misused in animal propensities, eating, sleeping, defending, and mating, instead of spiritual realization by advancing in the material comforts. The human being puts himself into a more miserable condition, but illusioned by material energy, he always thinks himself happy, even while in the midst of misery. Such misery of human life is distinct from the natural, comfortable life enjoyed even by the animals. हरे कृष्ण। तो हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं। गुरुजनों का आशीर्वाद लेके, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेके, सारे वैष्णव आचार्यों का, उपस्थित भक्त वृंद का। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचार नैक निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्य करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमस्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 10वें अध्याय के कुछ आखिरी के श्लोक 26, 27, 28, 29 और 30 बहुत छोटे छोटे हैं। तात्पर्य भी लगभग ना के समान ही है। और यहाँ पे अब जो है मैत्रेय मुनि जो सृष्टि हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ही स्टार्टिंग विद दैट, और वो आगे कहते हैं द क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स हु आर वन स्पीसीज ओनली। ये एक स्पीसीज ऐसी है, ये जो ह्यूमन बीइंग्स है। अभी देखते हैं हम लोग के जो है अलग अलग, जैसे आगे पहले वर्णन किया गया था वृक्षों का, तो वृक्ष अलग अलग प्रकार के हैं, फिर प्राणी हैं वो अलग अलग प्रकार के, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स दैट इज ओनली वन स्पीशीज। और यहाँ पे ये कह रहे हैं मैत्रेय मुनि, ये ऐसा जाति है जो अपना अन्न जो है अपने पेट में स्टोर करता है।
जैसे दूसरे प्राणी, चींटी क्या करती है, वो अपना शक्कर का एक दाना उठाती है, लेके जाती है, अपने पास स्टोर करती है। लेकिन वी ह्यूमन बींग्स, इवन मैत्री मुनि, उनको पता है, या सारे लोगों को पता है एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स, कि हम लोग जो है अपना एटेबल, मतलब दैट ये दिखा रहे हैं कि हम लोग कितने लालची हैं, हम लोग कितने स्वार्थी हैं, हम लोग मतलब अननेसेसरी वी आर, इवन इफ नॉट रिक्वायर्ड वी कीप ऑन ईटिंग एंड वी कीप ऑन स्टोरिंग। जैसे अत्याहार प्रयासश्च, जो रूप गोस्वामी जी कहते हैं, अत्याहार, अत्याहार का वो दो मतलब बताते हैं। अत्याहार इज ओवर ईटिंग एंड कलेक्टिंग मोर देन नेसेसरी। दैट इज द बेसिक मेंटालिटी। ये जो है एक उसका मनोवृत्ति है इस प्रजाति का, ये जो स्पीसीज है, ये जो योनि है, जमा करते रहता, जमा करते, नो इवन इफ नॉट रिक्वायर्ड। अभी जैसे हमेशा प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जब अगर कोई राइस का बैग अगर नीचे गिरा होगा, चिड़िया आएगी, वो अपना एक दाना जितना चाहिए वो खाएगी and चली जाएगी। जो भी पशु पक्षी है वो अपना खाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन मनुष्य को मिला इज सो ग्रीडी कि वो पूरा राइस बैग उठा के अपने घर ले जाएगा, बोलेगा चलो मेरे काम में आ रहा है, मैं स्टोर करके रखता हूँ इसको, मैं 4 महीना 6 महीना वॉट एवर ही कैन ईट, ही इज कीपिंग फॉर दैट। सो दैट इज द टेंडेंसी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग विच इज रॉन्ग। और यहाँ पे शास्त्रों में भी कहा गया है ये मेंटेलिटी मनुष्य जाति का कैसा है यहाँ पे। और ये कहा गया है इस 9th इन द रोटेशन, यानी ये जो क्रिएशन हो रहा है, ये 9वां क्रिएशन जो है वो मनुष्य जाति का है, मनुष्य योनि का है। तो देयर आर हाउ मेनी टोटल क्रिएशंस, डज एनीबॉडी रिमेम्बर? हमने देखा था, हेमांगिनी माता जी ने बहुत अच्छे से उसका विवरण भी किया था। डज एनीबॉडी रिमेम्बर? No one? Till now, Yes. 10 creation, 6 creation primary creation by the Lord, and और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी से जो बना वो प्रभु। या तो नो क्रिएशन है अभी। ये जो है मनुष्य जो है अभी 9वां क्रिएशन है, और इसमें से कुछ भगवान के द्वारा हैं बनाए गए और कुछ ब्रह्मा जी के द्वारा। तो दस एनीबॉडी रिमेम्बर? मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम लोग जो है हमारा बुद्धि में इसको हम लोग अर्जित कर सकें। तो इसमें से कुछ भगवान के द्वारा जो क्रिएशन है और कुछ ब्रह्मा जी के द्वारा। तो डज एनीबॉडी रिमेम्बर हाउ मेनी आर बाय लॉर्ड एंड हाउ मेनी आर बाय ब्रह्मा जी? प्रभु जी 6 क्रिएशन प्रभु जी वेरी गुड, भगवान की द्वारा। वेरी गुड। तो इनिशियल 6 जो है वो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, और आगे जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए। और यहाँ पे भी अभी आगे आएगा, जिसने स्टडी किया होगा परपट, दे विल दे कैन मेक आउट। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आज का जो ट्रांसलेशन है वो क्या कह रहा है? द क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स हु आर one species only and who stock their eatables in the belly is 9th in rotation. In the human race, the mode of passion is very prominent. Humans are always busy midst of miserable life, but they think themselves happy in all respects. अब यहाँ पे जो ये जो 9th क्रिएशन, उसके बारे में वर्णन है कि ये कैसा है, उसका मेंटेलिटी बता दिया। is stocking everything, is इवन ईटेबल्स वो अपने बेली में स्टोर करता है, सब जो स्टोर करने का हम लोग देखते हैं। इवन जो सोचते हैं कि मेरे बच्चे का हो गया, पोते का क्या होगा, पोते का हो गया, मेरे पर पोते का क्या, उसका हो गया तो उसके बेटे का, मेरे को सब जमा करना है। मतलब ही इज सो मच पैशनेट। तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि वो रजो अधिकाहा, मतलब रजोगुण में इतना लिप्त है वो कि ही इज वेरी, मतलब ये बहुत ही प्रोमिनेंट देखा जाता है इस योनि में। ह्यूमंस आर ऑलवेज बिजी इन द मिड्स ऑफ मिजरेबल लाइफ। कितना भी उसका लाइफ मिजरेबल है, लेकिन ही इज बिजी। ऐसा नहीं है कि कुछ जीवन में कुछ तकलीफ है तो थोड़ा सा बैठ के शांत हो गया, या
या उसके लिए कुछ करना है, या थोड़ा सा भगवान का भजन करना है, कुछ नहीं। इतना मिजरेबल लाइफ है, लेकिन फिर भी भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। इज सो बिजी, ही डजंट वांट टू फोकस। तो मतलब इवन मैत्रेय मुनि इज टेलिंग, ये कैसा प्रजाति है ये, कि इवन हिज लाइफ इज मिजरेबल। वो देख रहे हैं किसी के जीवन में कुछ प्रॉब्लम है किसी में, बट स्टिल ही इज सो बिजी, उसके पास टाइम नहीं है, ही इज सो रनिंग ऑल अराउंड, बट दे थिंक देमसेल्व्स। और इतना मिजरेबल लाइफ होने के बावजूद है, मतलब जो भगवान के द्वारा दिए गए जन्म मृत्यु जरा व्याधि और जो आध्यात्मिक आदि भौतिक, इसके अलावा इतना प्रॉब्लम्स माया देवी हम लोग को देती रहती, स्टिल वी थिंक क्या लाइफ है, मस्त एकदम। मेरे पास एक घर है, अरे वाह देखो मैंने कितना अच्छा सजा है। मेरे पास एक गाड़ी, अरे वाह क्या सुपर गाड़ी है। एक पत्नी है, तो अरे मेरे जैसी अच्छी क्या बोलते हैं ना, सर्वगुण संपन्न पत्नी किसी की नहीं। मेरे बच्चे, अरे देखो। तो ही सो मच, इतना वो माया से लिप्त है, भले ही उसका कंडीशन, इफ ही कंपेयर्स टू अदर्स, मे बी ही इज इन द वर्स्ट पोजीशन, लेकिन फिर भी वो ये सोचता है, अरे वाओ सो नाइस प्लेस, सच ए वंडरफुल हाउस, सच ए वंडरफुल कार, इतनी अच्छी पत्नी, इतने अच्छे बच्चे, मैं इतना बैंक बैलेंस, अरे वाह वाह वाह। सो ही इज इन सो मच, इतना तकलीफ है, इतना दुख है, उसको बीमारी है, दुख झेल रहा है, ऑफिस में गाली खा रहा है रोज, उसका बॉस उसको इंसल्ट करता है रोज के रोज, लेकिन फिर भी ही थिंक ओ आई एम सो हैप्पी। और उसका ये मैत्रेय मुनि ये बता रहे हैं कि दैट इज हिज नेचर। और फिर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा सा इसको आगे बताते हैं कि the human beings are more passionate than animals। तो हम लोग जानते हैं 3 लेवल है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सभी लोग हैं इसमें, पूरा क्रिएशन जो है इन 3 में विभाजित होता है। ह्यूमन बींग्स भी है, एनिमल्स भी है, लेकिन अब यहाँ पे ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी इज क्लैरिफाइंग कि ह्यूमन बींग्स आर मोर पैशनेट देन एनिमल्स। मतलब दूसरे भी हैं, लेकिन हिज ओवर, मतलब ना इतना ज्यादा पैशनेट है वो, और इसीलिए एंड दस द सेक्स लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मोर इरेगुलर। उसका जो मैथुन जो जीवन है वो इतना इरेगुलर है, बिकॉज एंड व्हाई इज दैट, बिकॉज ऑफ हिज दैट पैशन। थोड़ा सा टॉपिक हैवी है, जस्ट विल टच अपॉन दैट। प्रभुपाद व्हाट ही सेज, प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि इवन एनिमल्स हैव बेटर सेक्स लाइफ देन ह्यूमन बींग्स। वो कई बार उदाहरण देते हैं, बंदरों का उदाहरण देते हैं कि दे आर हैविंग बेटर अपॉर्चुनिटीज। इवन पिजन्स, दे आर हैविंग बेटर अपॉर्चुनिटीज। मैन कैन हैव 1 टाइम, बट दे कैन हैव 10 टाइम्स 20 टाइम्स एंड नो प्रॉब्लम। सो ऐसा नहीं है कि इसके पास ज्यादा फैसिलिटी है, he doesn't have that facility, he cannot do that, he is not capable, but still उसका जो पैशन है that is the problem। उसका ये जो रजोगुण है वो उसको उसकी तरफ और खींच के रखता है। तो प्रभुपाद इज फोकसिंग ऑन दैट और कहते हैं कि उसका जो सेक्स लाइफ है that is very very irregular and that is the problem। जैसे प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि ये जो इस भौतिक जगत में जो मेन शक्ल, जो मेन चेन जो हमको बांध के रखा है that is सेक्स लाइफ, और इसके कारण हम लोग इतने इस भौतिक इस जगत में बंधे हुए, हम लोग इससे निकल नहीं पाते, बिकॉज ऑफ दिस वन प्रॉब्लम, एंड दैट इज व्हाई बिकॉज ऑफ आवर रजोगुण। तो ऑटोमेटिकली देखेंगे जिसका रजोगुण जो कंट्रोल्ड है, तो ऑटोमेटिकली ये जो मैथुन जीवन भी उसका कंट्रोल्ड रहेगा। अगर ये कंट्रोल नहीं तो वी शुड अंडरस्टैंड वी आर ओवर वी आर इन पैशन। तो हम लोगों को इससे बाहर निकलना है हम लोगों को। फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, द एनिमल्स हैव देयर ड्यू टाइम फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इवन जो प्राणी हैं उनका एक टाइम है, उनका एक साइकिल है, वो बस उसी टाइम पे उनका जो मैथुन है, उनका जो रिप्रोडक्शन, इट्स जैसे आहार निद्रा भय मैथुन, ये दिस इज फॉर एवरीबॉडी। ऐसा नहीं दिस समथिंग स्पेशल फॉर ह्यूमन बीइंग्स और पशुओं को नहीं है, नहीं, एवरीबॉडी हैज, बट दे आर लिमिटेड। हाँ, बस ये टाइम। डज एनीबॉडी नो
लायन का क्या साइकिल है? डज एनीबॉडी नो अबाउट इट? उसका 22 times प्रभु जी in 24 hours. नो, लायन नो, Yes, lion प्रभु जी, मैंने क्रूगर नहीं नेशनल यू पार्क में पढ़ा था मैंने. no, if you Google out, this is something wrong information, नेशनल पार्क पे दिया होगा, but if you Google out, he has, ये मैंने बहुत साल पहले भी सुना था, and one of our senior devotees has gone to अफ्रीका for that सफारी पार्क में जो होता है, और वहाँ पे कैसा होता है कि वो लोग, मतलब वहाँ पे ऐसे केज नहीं है, प्राणी खुले घूमते हैं, हम लोग केज में थे. तो he told me that time कि lion only has once in a year, that is his, बस एक बार वो बोलता, वही एक टाइम है उसका, एक बार, and then he leaves home. और मैंने कल भी जब वापस I was trying, तो मैंने वापस जब गूगल आउट किया तो is capable, that male is capable of one, but the wild ones, they are capable of reproducing only once in 2 years. So we can understand कि even प्राणी जैसे lion जैसा प्रजाति है, वो भी सब साल में एक बार is doing that thing. But human beings, if we see, they are uncontrolled, and that's why Prabhupada is pointing out this thing, and you can Google out on जो Wikipedia और सब, इसमें आपको मिल सकता है कि how regularized they are, मतलब कितने controlled हैं. But that is not the thing with human beings, हमारे मनुष्य, और ये इसका एक ही प्रॉब्लम है, रजोगुण, ओवर रजोगुण है उसमें. तो ये that is pointed out by Srila Prabhupada, even animals have their due course, due time for their cycle. तो ये बताते हैं. फिर बाद में कहते हैं, the human being is endowed with a higher advanced stage of consciousness for getting relief from existence of material miseries. तो मनुष्य के पास उतना इंटेलिजेंस है, वो शेर के पास या कुत्ते के पास या बिल्ली के पास उतना इंटेलिजेंस नहीं है कि अरे यार मैं बिल्ली के शरीर में हूँ या शेर के शरीर में हूँ. शेर का शरीर ही में लुक मैजेस्टिक एंड, मतलब अच्छा लग सकता है, बट क्या जीवन है? अगर कोई अगर शास्त्रिक वे से देखे तो ही हैज टू ईट मीट, वो भी कच्चा, एंड ही डज दैट. सो क्या जीवन है उसका? तो उसके पास इतना इंटेलिजेंस नहीं कि मुझे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा जीवन जी रहा हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना चाहिए. ही डजंट हैव द only human being has that intelligence, जहाँ पे वो सोच सकता है. और हम लोग इसीलिए हम लोग को शास्त्र में जो है हम लोग को बताया जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये पाप है, ये पुण्य है. तो दिस इज बीइंग टोल्ड by shastras, and we have to use that intelligence. हम लोगों को अब क्या हो रहा है, प्रभुपाद तात्पर्य में भी इसको हाईलाइट करते हैं कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं, ये इंटेलिजेंस हम लोग अपने कंफर्ट्स के लिए कैसे यूज करें. हाउ टू यूज दिस फॉर माय सेंस ग्रेटिफिकेशन. कहीं पे कुछ अगर खाने मिल जाता तो अरे हम लोग कैसे ज्यादा खाएं, या कहीं पे कुछ हम लोग के पास anything, everything, he's looking from his own selfish viewpoint. अपने तरीके से अगर घर है तो मतलब अभी एक 1 रूम है तो मैं इसको 2 रूम कैसे करूं, 2 हो गया तो 4 रूम कैसे करूं, 4 रूम हो गया तो बंगला कैसे बनाऊं, बंगला भी हो गया तो फिर अभी मुझे 2 माले का बंगला चाहिए, वो भी हो गया तो, एंड it's on and on and on. उसका जो डिजायर्स है keeps on increasing and increasing. उसका कभी उसका एंड नहीं होता. he is uncontrollable in his desires. तो ये जो डिजायर्स है हम लोगों को सही दिशा में लगाना है. हम लोग जैसे प्रभुपाद भी बोलते हैं, खाने का इच्छा हो रहा है तो you desire that ये मैं जो भी बनाऊंगा that is for Lord. मैं पहले भगवान को अर्पण करता हूँ, भगवान को खिलाता हूँ, let him have that, and फिर whatever is his remnants, उनका झूठा है मैं खाऊंगा, and we will be happy. अब लेकिन क्या हो रहा है कि पिज्जा, पास्ता, पानी पूरी और पाव भाजी,
वड़ा पाव और पता नहीं क्या क्या क्या, he keeps on running after all these things and he is using his intelligence only for material comforts. अभी हम लोग देखें साइंटिस्ट लोग भी क्या कर रहे हैं, they are just inventing things which becomes and more comfortable for us. हमारे लिए कैसे, अभी सिंपल एक उदाहरण ले हम लोग मोबाइल का, तो लास्ट फ्यू इयर्स में, मे बी कपल ऑफ इयर्स, उसने हर चीज को रिप्लेस कर दिया। उसने पहले कंप्यूटर अलग हुआ करता था, अलार्म क्लॉक हम लोग अलग रखते थे, हमारा वॉच अलग रखते थे, रेडियो अलग हुआ करता था, टीवी अलग। अब एक ही डिवाइस में सब कुछ आ गया है। उन्होंने ऐसा चीज बनाया है कि उसके अंदर सब कुछ है, टीवी भी है, रेडियो भी है, अलार्म क्लॉक भी है, वॉच भी है, इंटरनेट भी है, कंप्यूटर भी है, सब कुछ है। तो वो एक छोटा सा डिवाइस लेके घूमता है एंड ही थिंक्स ही हैज अचीव्ड समथिंग मिरेकुलस। नो डाउट, या इट इज मिरेकुलस, बट ये मिरेकल जो है ये उसको कहाँ पे यूज कर रहा है, उसको अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज कर रहा है। इज बिकम सो इम्पर्सनल। अब देखें, हम लोग ट्रेन में देखे, हम लोग, आई रिमेम्बर जब हम लोग पहले जब ट्रैवल करते थे 15-20 साल पहले, 25 साल पहले, तो ट्रेन में, जैसे ट्रेन में जाते थे आपस में, अरे कैसे हो, क्या हो, आपस में बात करते थे, मतलब एक दूसरे से पहचान हो जाता। इवन इतना था कि मतलब वो जब उतर जाता तो बुरा लगता था, अरे यार ये इतना अच्छा, इससे दोस्ती हो गया था, इससे फ्रेंडशिप हो गया था, एंड पीपल यूज्ड टू मिंगल अमंग देमसेल्फ, वी यूज्ड टू बी पर्सनल। अब नाउ इफ यू ट्रैवल, हर कोई जो है बैठते ही वो कान में हेडफोन लगा देता है। मोबाइल से जो शुरू होता है स्टार्ट से लेके एंड तक, उसका हेडफोन नहीं उतरता उसका। सो मजा नहीं, उसको कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई किसी को कुछ तकलीफ दे रहा है, कोई लड़की को छेड़ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपना फोन में लगा हुआ है। अरे वाह वाह। सो हिज कॉन्शियसनेस, या जो एडवांसमेंट है, ही इज टेकिंग हिम डाउन। उसका जो कॉन्शियसनेस जो यूज करना है वो उसको यूज करने नहीं दे रहा है, विच इज रॉन्ग। और इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा हर अटेम्प्ट जो है, हमारे पास जो भी यूटिलिटीज है, हमारे पास जो भी टूल्स है, हम कैसे भगवान की सेवा में यूज करें। हम लोग भी मोबाइल यूज करते हैं, बट वी यूज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। मीटिंग्स रखना है, लेक्चर सुनना है, मतलब कैसे भगवान के भक्तों के संग में रहे, कैसे भगवान का प्रवचन, भगवान के बारे में सुने, यही सब दिमाग में चलते रहता है। सो that is how a devotee has to be। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी हाईलाइट करें कैसे एक जनरल जो पॉपुलस है वो कैसे इवन दैट एडवांसमेंट जो है वो उसका जो है उसका गलत उपयोग कर रहा है। ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं, thus his intelligence is misused in the animal propensities, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस उसी में लगा हुआ है उसको, बस eat, drink, be merry, ये करना है, खाना है, सोना है, बस इसमें। अब एक्सक्लूडिंग डिवोटीज, हम लोग देखते हैं नॉन डिवोटीज का लाइफ क्या है। किसी से भी पूछो कितने बजे उठ रहा, 8 बजे, 9 बजे, फिर 10 बजे। छुट्टी के दिन तो उन लोग का उठने का मन ही नहीं करता, फिर उठे भी तो क्या, खाया फिर सो गए। कोई बार में जा रहा है, कोई पब में जा रहा है, कोई डिस्को में जा रहा है, एंड देयर सो मच स्ट्रेस्ड। उसको स्ट्रेस को निकालना कैसा है, उसके लिए ये लोग ये सब करते हैं। अब फिर थ्रू आउट द वीक अगेन उनका वो स्ट्रेस जो है उनका बन जाता है। तो जस्ट ही इज लिविंग फॉर आहार, निद्रा, भय और मैथुन। लेकिन हम लोग जानते हैं, शास्त्र बोलते हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समानम्। तो अगर ये धर्म ही एक चीज है जो मनुष्य को इनसे अलग बनाता है, पशु भी करते हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन, हम लोग भी करते हैं, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? धर्मो हि तेषाम्, जो धर्म है वो हम लोग धर्म के बारे में समझ सकते हैं, धार्मिक कार्य कर सकते हैं, धर्म की और प्रगति करने का प्रयास कर सकते हैं, हम लोग भक्ति हम लोग पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये कुत्ते, बिल्ली और ये जो पशु पक्षी है, वृक्ष हैं, तो ये लोग को ये समझ नहीं है, जो पहले का क्रिएशन हो गया है उसमें ये बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है उसमें। तो ये हम लोग इसमें देखते हैं उसमें। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, बट इल्यूशन बाय मटेरियल एनर्जी ही ऑलवेज थिंक्स हिमसेल्फ हैप्पी इवन व्हाइल इन द मिड्स ऑफ मिस्ट्री। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इवन कितना भी दुखी हो, कितना भी परेशान हो, उसको
उसको जॉब में प्रॉब्लम है, उसको लाइफ में प्रॉब्लम है, उसके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है, उसके बच्चों में मतलब हर चीज में, बट स्टिल ही थिंक्स आई एम हैप्पी। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं वो कि कैसे जो मनुष्य जीवन किसको खुशी समझता है, तो बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उन्होंने बताया था ये कि जब पूर्व के समय में जब राजा किसी को दंड दिया करता था, उसको क्या करते थे, उसको बोट में बिठा के बीच में नदी के बीच में लेके जाते थे और उसको वहां पे उसको ऐसा सजा देते थे, उसको पानी में डुबा दे देते, उसको पूरा मतलब पानी में ढकेल देते और उसको पूरा सर जो पाल पकड़ के उसको पानी में डुबा के रखते थे। और जब तक उसका मतलब एकदम ऐसा सांस टूट नहीं जाए, बस अभी मरने वाला है, तब उसको 1 सेकंड के लिए खींचते थे, तब हाँ, और फिर जैसे ही उसने सांस ले लिया, जैसे खींचता फिर उसको अंदर डुबाया। तो ये इसके साथ होता। तो ये हमारा भी ऐसे, हम लोग को इतने परेशानी, इतना दुख, इतना तकलीफ कंटिन्यूस, और बीच में जो 1 सेकंड के लिए हम लोग को थोड़ा सा कुछ क्षणिक सुख मिल जाता है, कुछ रसगुल्ला खा लिया या कुछ समथिंग मटेरियल थिंग, उसमें हम लोग को लगता है हम लोग सब भूल जाते हैं। हम लोग इतना दुख है, इतना पूरा जीवन में जो परेशानी चल रहा है वो बिल्कुल इग्नोर करते हैं, इग्नोर मार देते हैं उसको। तो ये जो है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। He has to understand the शास्त्रास, उसको शास्त्र समझना चाहिए, मेरे जीवन में क्या चल रहा है उसको स्टडी करना चाहिए, कितना दुख है, कितना परेशानी है, अब मैं दुखी हूँ, ये उसको रियलाइज होना चाहिए। जब तक वो रियलाइज नहीं होगा, जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज क्या बोलते हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड टॉयलेट है। मतलब जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं, टॉयलेट में कोई वहां पे बैठना पसंद नहीं करेगा, अपना काम करेगा, वापस आ जाएगा, गेट फ्रेश, कम आउट। लेकिन मनुष्य अब ऐसा हो गया है कि इस टॉयलेट को ही उसने अपना भौतिक जो है मतलब सुविधाएं दे दे के उसने उसको मतलब यहाँ पे कैसे मैं और लंबा जीऊं, और डॉक्टर को पैसा देने के लिए तैयार है। माइकल जैक्सन का उदाहरण हम लोग देखते हैं, वो बोला कि मैं आपको कितना पैसा चाहिए, बोला मैं देता हूँ, बट मेरा जीवन में। लेकिन 1 सेकंड भी, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, चाणक्य के पंडित भी बोलते, एक फ्रैक्शन, 1 सेकंड तो जाने दो, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड भी हम लोग उसको खरीद, लाखों डॉलर देके भी नहीं खरीद सकते। सो ये जो है, इसका सदुपयोग हम लोग कैसे करें, हम लोग को बड़ा मुश्किल से, हम लोग को ये बोलते हैं ना अमूल्य, इसका कोई मूल्य नहीं है। बहुमूल्य मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू, ये बहुमूल्य नहीं है, अमूल्य है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब इस अमूल्य वस्तु को टीवी में, बार में, डिस्को में, थिएटर्स में, इसमें क्यों वेस्ट करना? इसको हम लोग को सही जगह पे हम लोग को इसको लगाना है। सही जगह क्या है, हम लोग भगवान के शरण में जाके हम लोग जो है इसको हम लोग सही रास्ते पे ला सकते हैं। कि कोई पूछ सकता है ये भगवान के भक्ति ही में क्यों करूं मैं, या इतना कुछ अच्छा चल रहा है, मेरा इतना बड़ा धन दौलत है, पैसा है, गाड़ी बंगला है, इतनी सुंदर, सबसे दुनिया की सबसे सुंदर मिस वर्ल्ड जो है वो मेरी पत्नी है, इतने सुंदर बच्चे हैं, तो व्हाट इज रॉन्ग, मैं क्यों करूं भक्ति को? तो ऑल दिस थिंग, ये जो है ये टेम्पररी है, क्षणिक है। भले उसके पिछले कर्मों के कारण उसके पास ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी कुछ दुख नहीं भी है उसके पास। चाहे जो एक साधारण मनुष्य का जो जीवन में जो दुख होता है, उसको बीमारी है, तकलीफ है, जॉब की प्रॉब्लम है, बाकी सब वो नहीं, लेकिन फिर भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और आधि दैविक, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, ये उसको तकलीफ उसको छोड़ने वाली नहीं। तो ये उसको रियलाइज करना है, और इससे उसको जब वो रियलाइज करेगा कि मैं टॉयलेट में हूँ, तभी वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा, नहीं तो वो उस टॉयलेट में ही रहेगा हमेशा। और ये सभी एक जनरल टेंडेंसी है, वो कैसे इसको इम्प्रूव करें। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, हम लोग देखते हैं इंद्र जो था, वो उसको जब सुअर का भी जब उसको जन्म मिल गया, तो उसको बोला, अरे ब्रह्मा जी आके बोले तुम्हारा श्राप खत्म हो गया, चलो अभी। बोलते नहीं 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 नहीं, आई वांट टू स्टे हियर, मेरी इतनी सुंदर पत्नी, इतने अच्छे बच्चे, इतना अच्छा खाना मेरे पास, ये सब छोड़ के मेरे को नहीं जाए। तो वी कैन अंडरस्टैंड, इतने जो हाई लेवल के जो व्यक्ति है उसका जब ये हाल हो सकता है, तो हमारा क्या गति है उसमें। सो वी हैव टू बी इंटेलिजेंट, वी हैव टू पॉन्डर अगेन एंड अगेन। अगर जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो इट इज नॉट टू ओवरकम, कैसे इसको सॉल्यूशन निकालो, उसके लिए नहीं है। हाँ, ये एक झटका है, हाँ, ये मटेरियल वर्ल्ड मेरे लिए नहीं है, भगवान
जब बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, तो इसको समझना है, उस दुखालय को, उसको दुख को मिटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए हमको। ये अशाश्वत को शाश्वत बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम लोग बोटॉक्स करते हैं, लाइफ बढ़ाने के लिए करते हैं, सुंदर बनने। सो दिस इज नॉट द एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये है टू रियलाइज, ओ आई एम सच एन हॉरिबल कंडीशन, मुझे यहाँ से निकलना, ये रियलाइज करना सबसे। और ये जब रियलाइज होगा तभी वो वहां से निकलने का प्रयास करेगा, नहीं तो ही विल जस्ट कीप ऑन इम्प्रूविंग। ओ अच्छा, दांत टूट रहा है, मैं नकली दांत लगा लूँ, बाल गिर रहे हैं, मैं विग लगा लेता हूँ, मैं ये हो रहा है, बीमारी है, इसको मैं दवाई खा लेता हूँ। सो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा सब जो है हम लोग को अपना शरीर का ध्यान नहीं रखना चाहिए, बट टू सर्टेन एक्सटेंट, नॉट ओवर। हम लोग को इतना नहीं कि हम भगवान का भक्ति भूल जाए हम लोग उस चक्कर में। हम लोग ये सब करके अगर हेल्दी रह के भगवान का सेवा कर रहे हैं तो यू डू दैट। तो उसमें हम लोगों को उद्देश्य जो है, गोल, फाइनल गोल शुड बी सर्विंग द लॉर्ड, शुड बी सर्विंग द स्पिरिचुअल मास्टर, शुड बी सर्विंग द डिवोटीज। ये अगर है तो वी कैन डू दैट। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम लोग कैसे, हम लोग इसमें खुश हैं। वो खुशी जो है हम लोगों को आध्यात्मिक प्रगति करने से हम लोग को रोक रही है। तो वी शुड गेट आउट ऑफ दैट रॉन्ग फीलिंग कि मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे इसका कुछ दुख है तो मुझे इसका कुछ, इसका तोड़ निकालना है। अब इसका कैसा, मेरे धन की कमी है, अपने यहाँ से मैं ये पैसा निकालता हूँ, वहां से मैं वो शेयर्स में डालता हूँ, ये एफडी तोड़ता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। ये प्रॉब्लम इज टू रियलाइज दुखालयम अशाश्वतम। ये रियलाइज नहीं करेंगे हम लोग बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो ये रियलाइज करना है, तभी हम लोग जो है हम लोग भक्ति की तरफ सीरियसली अग्रसर होंगे। नहीं तो हम लोग इसी जो है एंड सॉल्यूशंस को, हम लोग जो है प्रॉब्लम्स जो है उसको ठीक करने में लगे रहेंगे। तो ये है। और फिर बाद में आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, सच मिजरी ऑफ ह्यूमन लाइफ इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नेचुरल कंफर्टेबल लाइफ एंजॉयड इवन बाय द एनिमल्स। तो हमने देखा कि कैसे जो है पशुओं को भी बेटर जो है उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं, कबूतर को, मंकीज को, इवन ईटिंग एवरीथिंग दे हैव बेटर फैसिलिटीज। लेकिन जो है हम लोग उसी में उतना, इसमें हम लोग खुश रह रहे हैं हम लोग। तो वैसे नहीं होना चाहिए। और फिर ये रखना चाहिए, समझना चाहिए कि हम लोगों को अब भगवान की भक्ति कैसे करें, और सारा जो अपना जो भी सामग्री है भगवान की सेवा में कैसे यूज करें हम। तो फिर हम लोग दूसरा श्लोक देखते हैं। सॉरी, 27 में जो है यहाँ पे कहा गया है, अ गुड विदुर, द लास्ट 3 क्रिएशंस आर द क्रिएशन ऑफ द डेमिगॉड्स, द 10th क्रिएशन आर वैकृत क्रिएशन। तो ये जो 9 क्रिएशन है, जो 9 क्रिएशन, उसमें से जो 10वां है बोलता है द लास्ट 3 क्रिएशन, यानी 7, 8 और 9। तो 7, 8 और 9 क्या है हम लोग देखते हैं। 7वां जो है दैट इज द इमूवेबल एंटिटीज, जैसे वृक्ष के बारे में कहा गया, तो वो भी 6 प्रकार के अलग अलग वृक्ष थे। 8वां जो क्रिएशन है वो लोअर स्पीसीज ऑफ लाइफ था, उसके बारे में कहा गया है कि, और इतना कि वो लोग दे आर एक्सटेंसिवली फुलिश एंड इग्नोरेंट, वो 8वां क्रिएशन था। और 9th क्रिएशन इज ह्यूमन बींग्स। तो ये जो लास्ट 3 है, वृक्ष, लोअर स्पीसीज ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन बींग्स, एंड द 10th यहाँ पे मैत्रेय मुनि कर रहे हैं, ओ गुड विदुर, द लास्ट 3 क्रिएशंस एंड द क्रिएशन ऑफ द डेमिगॉड्स। जो डेमिगॉड है, द 10th क्रिएशन आर वैकृत क्रिएशंस। अब वैकृत क्या है? वैकृत मतलब जो ब्रह्मा जी का क्रिएशन है, जो ब्रह्मा जी बनाते हैं। फिर उसके पहले जो 6 हैं वो भगवान बनाते हैं, और लास्ट 3 जो है 7, 8, 9 वो ब्रह्मा जी बनाते हैं, और 10th वो वैकृत है, वो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया है। और ये विच आर डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड प्राकृत और नेचुरल क्रिएशन। जो पहले के जो 6 हैं उससे अलग है ये। और यहाँ पे ये कह रहे हैं, अब जो कुमार हैं, द अपीयरेंस ऑफ कुमारास इज बोथ। जो कुमार जो है उनका जो अपीयरेंस है वो वैकृत भी है और प्राकृत भी है, मतलब भगवान का भी है, ब्रह्मा के द्वारा भी। तो हम लोग देख सकते हैं कैसे, क्योंकि वो भगवान के अंश हैं। भागवतम में हमने आई थिंक 2nd कैंटो में कहीं पे देखा था कि वो भगवान की, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअल सीक्वेंस, नारद जी तीसरे थे, कुमारस वर फर्स्ट और समथिंग लाइक। तो भगवान के ही वो एक जो है एक्सपांशन, दैट्स व्हाई वो प्राकृत है, बट दे कम आउट ऑफ, जैसे
शिव जी है, शिव जी ट्रांसेंडेंटल, बट स्टिल वो ब्रह्मा जी के भुवों में से निकलते हैं। वराहदेव भगवान ब्रह्मा जी के नाक से निकलते हैं उनसे। सो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया। कोई मूर्ख व्यक्ति बोल सकता है अरे तुम्हारा वाला वराह तो जो है ब्रह्मा जी के नाक से आता है, ऐसा नहीं है। दैट इज हिज वे ऑफ अपीयरिंग। तो भले ही वो ब्रह्मा जी के द्वारा जो चार कुमार हैं, बट स्टिल दे आर प्राकृता, एंड दैट्स व्हाई ये जो क्रिएशन है जो चतुर कुमार का है, कुमार सार बहुत प्राकृत एंड वैकृत, इसमें दोनों आ जाते हैं इसमें। और फिर 28 एंड 29, 28 और 29 जो है द क्रिएशन ऑफ डेमिगॉड्स। अब ये जो 10वां जो क्रिएशन है डेमिगॉड्स, इसमें भी 8 प्रकार है। ये मैत्रेय मुनि अब समझा रहे हैं। अब ये 8 प्रकार क्या है, मैं खुद जब पढ़ा था आई वाज शॉक्ड कि मतलब किस किस को इसमें काउंट किया है। दिस इज वंडरफुली एक्सप्लेन्ड बाय मैत्रेय मुनि, बहुत अच्छे समझा है। डेमिगॉड्स इंद्र, चंद्र, वायु, अग्नि, सारे जो शनि देव, ये जो सारे ये डेमिगॉड्स। फिर 4 फादर्स, द पितृ। तो कुछ लोग सोचते हैं पितृ यानी भूत लोग होते हैं, अरे पितृ तो मतलब हमारे जो 4 फादर्स है वो मर गए तो वो भूत है, मतलब नहीं, इवन पितरस। और इसीलिए जब देखते हैं किसी का वो सही तरीके से वो फॉलो नहीं करता तो पितृ दोष लगता है उसको। इवन दे आर वन ऑफ द क्रिएशन, मतलब उनको उस 8 प्रकार में गिना गया है। फिर असुरस, जो असुर हैं उनको भी इनमें गिना गया है। जो रावण है या हिरण्यकशिपु उनको भी इस कैटेगरी में गिना गया है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं दे आर नॉट ऑर्डिनरी। जैसे इवन भूत है, प्रेत है, पिशाच है, उनको भी इसमें गिना गया। यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सिद्ध, चारण, विद्याधर, उनको सबको इसमें गिना गया है। बिकॉज इवन भूत प्रेत जो हैं उनको क्यों इसमें उस श्रेणी में क्यों गिन रहे हैं? बिकॉज दे हैव सम सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज। उनके पास वो कैपेबिलिटीज है जो मनुष्य नहीं कर सकता। देयर इज समथिंग बियॉन्ड। दे कैन पास थ्रू वॉल, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में सेकंड में टक करके उधर से निकल। सो दिस ऑल ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डू। इसलिए उनको उस मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि इस जो देवताओं के जो 8 प्रकार है उसमें गिना गया। तो विल सी डेमिगॉड्स, पितरस, असुरा, गंधर्व एंड अप्सरस। गंधर्व और अप्सरस को इसमें, गंधर्व हम लोग जानते हैं जो गान करते हैं, और अप्सरस जो नृत्य करती हैं। फिर यक्ष और राक्षस। यक्ष जैसे कुबेर जी हैं, या यक्ष तो मुझे एक ही पता है, तो यक्ष हैं, कुबेर जी हैं। फिर राक्षस जो है जैसे इतने सारे जो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, कुंभकर्ण, ये सब। फिर सिद्धास, चारणास, विद्याधर, ये है। फिर भूत, प्रेत, पिशाच हैं। एंड सुपर ह्यूमन बीइंग्स, जो सुपर ह्यूमन बीइंग जितने भी हैं वो सारे एंसेलेस्टियल सिंगर्स जो हैं वो उनको इसके ऑल आर क्रिएटेड बाय ब्रह्मा द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तो ये जो 8 प्रकार के जो देवता गण हैं वो इसमें आते हैं। अब इसमें कहा प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, एक्सप्लेन द सेकंड कैंट ऑफ श्रीमद् भागवतम, सिद्धास आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सिद्धलोक। तो सिद्धलोक में ये लोग रहते हैं, और ये The resident travels in the space without vehicles। ऐसा नहीं है चलो पुणे जाना है वो गाड़ी में बैठो फटाफट निकल गए। हम लोग को इवन देवताओं को, इंद्र का व्हीकल कौन है? इंद्र का व्हीकल प्रभु ऐरावत। ऐरावत है, उसको भी व्हीकल चाहिए। ब्रह्मा जी का व्हीकल क्या है? कई बार फोटो देखा है हमने, किस पे बैठता है वो? हंस प्रभु स्वान। हंस, यस, हंस पे बैठता है। लक्ष्मी जी? उल्लू। उल्लू। भगवान विष्णु? गरुड़ पे है। तो डज दैट मीन ही रिक्वायर्स अ व्हीकल? बिना व्हीकल के नहीं जा सकते वो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इन जो देवता है एंड जस्ट ये एक इसके लिए ये जो देवता है ये बिना व्हीकल के नहीं जा सकते। लेकिन भगवान विष्णु जो है वो भगवान है, वो गरुड़ नहीं भी है तो उनको कोई जरूरत नहीं है, जस्ट उनको सेवा ले लिया उसने। गरुड़ जी ने बोला मैं आपका वाहन बनता हूँ, बोले ठीक है। ये शिव जी है, उनका नंदी है। वैसे सारे देवताओं को व्हीकल्स का जरूरत है। चलो डर एक्सीलेटर मारा, इग्निशन डाला, निकल पड़े।
बट सिद्ध उच्चारणों को ऐसा नहीं है। इवन नारद मुनि जी को देखते हैं, उनको कोई व्हीकल की जरूरत नहीं है, जस्ट इच्छा किया सट से सीधा तुरंत वो गोलोक पहुंच जाते हैं, तुरंत से इच्छा किया वो नरक लोक में पहुंच जाता है, तुरंत से इच्छा किया वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं, जो मतलब जस्ट दे डिजायर। सच मतलब ऐसा जो फैसिलिटी जो इवन देवताओं को नहीं है, जो सिद्ध सर जो है इनका, तो दे आर रेसिडेंट्स ट्रैवलिंग विदाउट व्हीकल, उनको किसी व्हीकल की जरूरत नहीं। जस्ट इंद्र को भी अगर कहीं जाना है तो वो ऐरावत का वेट करना है, भाई ऐरावत आएगा फिर बैठे, उनको ऐसा नहीं, जैसे मन किया चलो भाई तो दे स्टार्ट लिविंग। तो ये इनके बारे में 8 प्रकार के जो देवता हैं उनका वर्णन किया गया है। और लास्ट वाला जो है अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशान मनवंतरानि च। तो अब बोल रहे हैं नाउ आई शैल डिस्क्राइब द डिसेंडेंट्स ऑफ मनु। अब जो अगला अध्याय जो होगा उसमें सारे मनुओं के बारे में वर्णन होगा, वहां पे अलग अलग प्रकार के मनु जो है उनका वर्णन होगा। हम लोग जानते हैं अभी जो मनु है वो कौन सा मनु है? डज एनीबॉडी नो दैट? और कितवा मनु है? यस सेवेंथ है उनका नाम, अनवेरिफाइड है, नाम नहीं आ रहा उसमें, कौन है? वैवस्वत मनु। तो उनका विवस्वान तो सूर्य देवता है, ये वैवस्वत मनु है। तो ये तो ये जो है ये सारा मनुओं का वर्णन अब आगे वाले अध्याय में। तो यहाँ पे ये लास्ट श्लोक में यहाँ पे बता रहे हैं कि अब नाउ आई शैल डिस्क्राइब द डिसेंडेंट ऑफ मनु। मैं सारे मनुओं का वर्णन तुम्हें करूंगा। द क्रिएटर ब्रह्मा एज द इनकारनेशन ऑफ द पैशन ऑफ मोड ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, जो भगवान के जो मोड ऑफ पैशन है उसके इनकारनेशन है। तो ब्रह्मा जी जो है वो इनकारनेशन ऑफ पैशन है, ठीक है। क्रिएट्स द यूनिवर्सल अफेयर्स विद अनफेलिंग डिजायर्स। ये बहुत अच्छा यहाँ प्रभुपाद जी इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, मैं उसका हिंदी में एक बार अनुवाद पढ़ता हूँ। अब मैं मनुओं के वंशजों का वर्णन करूंगा। सृष्टा ब्रह्मा जो कि भगवान के रजोगुणी अवतार हैं, भगवान की शक्ति के बल से प्रत्येक कल्प में अचूक इच्छाओं सहित विश्व प्रपंच में सृष्टि करते हैं। अनफेलिंग डिजायर, ऐसा नहीं है कि उनका कुछ इच्छा हुआ ये मुझे करना है, और हमारा तो ऑलमोस्ट 90% डिजायर हमारा फेल हो जाता है। हमारा ये करना है, अरे नहीं हुआ, ये करना है, अरे नहीं, बट ही उसने डिजायर किया ब्रह्मा जी ने, तो वो करके ही छोड़ेंगे। ये मतलब उनको भगवान का आशीर्वाद, हमने देखा जैसे ब्रह्मा जी के प्रयास थे, तो जो भी है वो मेरे कृपा प्रसाद से, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा काम होगा। तो अनफेलिंग डिजायर्स, उनको अगर करना है तो ही कैन डू इट, चाहे कितना भी इम्पॉसिबल टास्क हो। ब्रह्मा जी सच ए डिवोटी ब्रह्मा भगवान के, कि अगर उनका इच्छा हो गया ये करना है तो ही कैन डू इट, ही इज एम्पावर्ड टू डू दैट। तो इसके लिए यहाँ पे बोलते हैं कि अनफेलिंग डिजायर्स इन एवरी मिलेनियम। और ऐसा नहीं है मतलब इसी ब्रह्मा जी को नहीं है, चाहे कोई भी कल्प हो, कभी भी कोई भी ब्रह्मा हो जाए, ही इज सो पावरफुल, ही कैन डू दैट बाय द फोर्स ऑफ लॉर्ड्स एनर्जी। भगवान की जो एनर्जी है, भगवान की जो शक्ति है, उसके आशीर्वाद से वो कर पाते हैं। तात्पर्य बहुत छोटा है, मैं क्विकली पढ़ लेता हूं एंड देन विल तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद कीजिए। The cosmic manifestation is an expansion of the one of the many energies of the supreme personality of Godhead। ये जो सृष्टि है ये भगवान की ही एक जो शक्ति है, और the creator and the created are both emanations of the same supreme truth। तो जो क्रिएटर यानी ब्रह्मा एंड क्रिएटेड, जो सारा सृष्टि हमने अभी तक जो देखा, ये अलग अलग प्रकार के जो सृष्टि देखा, ये सब जो है वो भगवान से ही आते हैं, भले उसमें दिखता हो ऐसा कि ब्रह्मा जी कर रहे हैं। As stated in the beginning of the भागवतम जन्माद्यस्य यथा अन्वयात्, जो पहला श्लोक है, सब कुछ भगवान से आता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल के यहाँ पे ये जो श्लोक है खत्म करते हैं। और जैसे हमने देखा कि जो पहले इसमें 26 और 26 में उन्होंने क्या बोले वो, कि ह्यूमन बींग्स जो उनका 9th क्रिएशन है वो कैसा है, उसका मेंटेलिटी क्या है, कितना पैशनेट है, कितने भी दुख में वो सुख का अनुभव करता है। इज दिस गुड और बैड? इज इट ए बून के बर है
दुख में सुखी रहना। सुख का अनुभव करना। इतना भी जीवन दुखी है, इतना तकलीफ है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, बीबी गाली दे रही है, बॉस गाली दे रहा है, बच्चे पीट रहे हैं उसको, अरे इसलिए अरे वाह कितना आनंदमय जीवन है। तो इज दिस गुड थिंग और दिस इज अ बैड थिंग? बैड प्रभु जी। Yes. Materially, he can think it is good. देखो इतना जीवन में तकलीफ फिर भी मैं खुश हूँ, और लोग यही देखते हैं कि कितना जो अरे मनुष्य कितना सुखी है, देखो इतना तकलीफ है, बट उसका वो जो सुख है हमने देखा वो उसको आध्यात्मिक प्रगति करने नहीं देता. That is keeping him attached to all his miseries. वो उसके लिए मिजरी है लेकिन फिर भी उससे अटैच्ड है. सो दैट इज बैड थिंग. तो 9th क्रिएशन के बारे में देखा, 10th क्रिएशन के बारे में देखा हमने, डेमिगॉड्स के बारे में, उसके 8 प्रकार है वो देखा, और फिर लास्ट में यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं, सॉरी मैत्रेय मुनि कहते हैं कि मैं अब तुम्हें सारे मनुओं का जो सृष्टि के बारे में बताऊंगा. तो हम लोगों को यही सीखना है कि जैसे मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स आर टू ओवर पैशनेट, वो हम लोग को नहीं है, रजोगुणी. ये रजोगुण हम लोगों को कंट्रोल करना है, हम लोगों को हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, एंड जितना हम लोग इसको जो है हम लोग इसको कम कर सकें वो हम लोगों को करना है. एंड भक्ति में हम लोग को आगे भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है ये कम होते हैं. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जैसे जैसे इसमें आगे जाएंगे ये अपने आप छूटता जाएगा. विद दिस मैसेज आई विल स्टॉप हियर. हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. इस्कॉन गोविंद की जय. सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय. हरे कृष्णा.